कंटिन्यू करते हैं. So what we saw in previous class, let's see that first very quickly. H1 Spring Core day 1. So we talked about some forget about the left section, but this is important, right? We need to understand that when it comes to Spring, we call that simple class as entity class. Sorry, bean class. In Hibernate it was entity, and in Spring it is bean. So everything is same. The naming convention, you can say it's different. It varies from technology. You can say framework wise. So in Core Java it was Pojo. In Hibernate it was entity. Now in Spring it is bean. Okay, then we saw what we can discuss. It's not like we have to discuss all these. It again depends upon the requirement and the timeline. So this was this, and we talked about some Hibernate concepts and Spring Framework stuffs. Okay, now we will move forward, like how to create stuffs. But before that, we need again some basic idea, like what is Spring Framework. Spring Framework is also known as framework of frameworks, so you can say mother of frameworks. So once you have a Spring application, again I'm not talking about Spring Boot. Spring Boot is just one of the module of Spring Framework. So once you have a Spring Framework application here for your project, that means you can integrate lots of frameworks within it. And what you have to do, just either you can through, I mean, you can configure them through XML or through annotations. So totally up to you how you want to configure your application. So that's one thing, framework of frameworks. Just remember this line. You will always remember like how important and how powerful this framework is. Okay, so integration is quite easy. XML के annotation आपको पता होना चाहिए, XML के सॉरी टैग्स पता होना चाहिए, या फिर annotation पता होना चाहिए. Either way, okay, you don't have to go for both. But what we do in our current scenario, we will mix up like 50% NO, 50% XML. That's how we're going to configure our application. We'll start with XML configuration initially, then we will gradually move to some annotations based, uh, configuration. Okay, so okay, that's one of the you can say one of the biggest advantage of Spring Core or Spring Framework. Then IOC, inversion of control. We also call this DI, dependency injection. So this we will see through coding, how we can achieve it. But for now, there's a term dependency injection or inversion of control. Spring Framework is because famous is because of this IOC. It's quite smooth here, really smooth. Okay, that we will see what is dependency injection, how to achieve it, and how many ways are there to achieve this dependency injection. And then finally, Spring Container. Remember when we were doing JSP servlet, so there was web container or Tomcat server container. We sometimes call this servlet container. Likewise, we have a Spring container within it. When you're writing any library. So in memory, it has a container which manages life cycle of Java objects. So in memory, हम something like when we are configuring something external file, जब कोई फाइल हम बाहर से ऐड करते हैं प्रोजेक्ट में, तो वो एक्सटर्नल फाइल हो गई या फिर थर्ड पार्टी फाइल हो गई. यहाँ पे ये इन मेमोरी सर्विस देता है कि जैसे आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए आप कोई लाइब्रेरी ऐड करोगे by any medium, by adding jar files or by using any tool like Maven or Gradle. सो वहाँ पर इन मेमोरी एक कंटेनर क्रिएट होता है, और वो क्या करता है, जो जावा की ऑब्जेक्ट्स है उनकी लाइफ साइकिल को मैनेज करता है. सो दैट इज क्वाइट वास्ट. सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो हम जब जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दिस इज व्हाट वी डू, राइट. परसेंट p इक्वल्स न्यू परसेंट, तो हम क्या कहते हैं, हमने जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. स्प्रिंग का तरीका क्या है कि यही चीज़ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसमें, XML फाइल में, और यू कैन यूज़ ऑटो वायरिंग. Okay, so you don't have to go for this manual approach. Spring में I'm talking about Spring framework, Spring core, कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं है. किनकी, उन क्लासेस की विच आर गोइंग टू बी पोजो क्लासेस और सर्विस फाइल्स और योर डिपेंडेंसी फाइल्स और कंट्रोलर फाइल्स. तो 4-5 मिनट टाइप बता दिए. सो जब हम प्रैक्टिकल इम्प्रूव करेंगे, अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं. पर आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट वे इज कोर जावा से हाइबरनेट तक हमने देखा कि हम जो हमारे पोजो क्लासेस थे उनके ऑब्जेक्ट हम खुद से बना रहे थे, ऐसे करके ऑब्जेक्ट करके न्यू कंस्ट्रक्टर. नाउ वी आर लर्निंग स्प्रिंग, और स्प्रिंग में क्या होता है, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होता है. तो इसमें दो तरीके हैं, इधर यू कैन गो फॉर एक्सएमएल और एनोटेशन. तो अगर एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन, डेफिनेटली एक एक्सएमएल फाइल बनेगी और वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड होगा. अगर एनोटेशन है तो एक एनोटेशन होती है एट ऑटो वायरिंग, ये काम कर सकते हैं. सो वी विल सी थ्रू प्रैक्टिकल, बट दिस इज लाइक वन ऑफ द ओवरऑल पिक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. इस इमेज में कोई डाउट, क्वेश्चन, कुछ भी. फास्ट बोल रहा हूँ बता देना, मैं रुक जाऊंगा, धीरे बोलना शुरू कर दूंगा. कल मत बोलना कि सर आपने कल फास्ट बोल दिया, मैं समझ नहीं आया.
ठीक है, तो नो क्वेश्चन, फाइन. So let's move to next. So now we are going to create a Spring Core application by using again Maven. So पहला स्टेप है कि एक Maven प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसको कुछ नाम दे दो. तो ये मैंने प्रीवियस में पिक कर लिया टू सेव सम टाइम. ठीक है, तो एक Maven प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कैसे चीज़ करती है. तो इनिशियली हमको क्या चाहिए, एक Maven प्रोजेक्ट चाहिए. सो फाइल न्यू, फॉरगेट अबाउट कि स्प्रिंग है या हाइबरनेट है, वो अब जो हम पॉम फाइल में एंट्री करेंगे उसके हिसाब से Maven लाइब्रेरीज डाउनलोड कर लेगा और अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट एक्ट करेगा. तो अगर उसमें आपने स्प्रिंग की लाइब्रेरीज डाल दी तो स्प्रिंग प्रोजेक्ट हो गया, हाइबरनेट डाल तो हाइबरनेट हो गया. अगर आपने दोनों को एंट्री कर दी तो स्प्रिंग हाइबरनेट का एप्लीकेशन हो गया. you know. तो फॉर नाउ जस्ट क्रिएट अ Maven प्रोजेक्ट. सो फाइल न्यू, then Maven project, then next, then make sure this is selected, archetype quick start for core applications, then next, then you have to give a group ID. So I'll say org.spring sf, let's say spring framework, and then I'll give a name. I'll say spring core app. Okay, spring core app done, and say finish. So again one simple Maven application gets created. Okay, done. We have our application here. मैंने बाकी एप्लीकेशन क्लोज कर दिए हैं ताकि कंफ्यूजन हो कौन सा एप्लीकेशन कौन सी वाले ओपन है. अभी सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे, स्प्रिंग कोर ऐप. और ये इसका स्ट्रक्चर है. सो इफ़ यू गाइज रिकॉल, व्हेन वी वर डूइंग Maven प्रोजेक्ट, तो हमने उसमें दो तीन कॉन्फ़िगरेशन चेंज की थी. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इक्लिप्स में हम पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है. सो मैं बाय इनिशियली मैं और इंटेंशनली मैं इसी फाइल वर्जन को यूज़ करता हूँ क्योंकि कुछ फाइल्स मिसिंग होती है. जब तक वो फाइल ऐड नहीं करोगे आपका Maven प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा. इसमें दो चीज़ें अजीब हैं, एक मिसिंग है और एक अजीब चीज़ है इसमें. क्या है वो, एनीवन? शुभम, विपिन? सर एक तो ये जीएस को अपडेट करेंगे ठीक है, बिल्कुल. और नेक्स्ट? सर वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो डालेंगे सर इसमें शायद। फाइल नहीं, पहले तो उसका लोकेशन बनाना पड़ेगा ना, हमें एक सोर्स फोल्डर. वही नहीं है हाँ तो सर। सोर्स कहाँ है? हाँ, हाँ, राइट. ठीक। ओके, ग्रेट. ठीक है, तो पहले तो अपडेट करना है 1.5 जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है. प्रॉपर्टीज जाएंगे, बिल्ड पाथ, इसको हटाते हैं, एडिट कर देते हैं सीधा और यहाँ से 1.8 पे कर लेते हैं. फिनिश, अप्लाई, अप्लाई क्लोज. तो जावा एस ई फॉर स्टैंडर्ड एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन 1.8 ऐड हो गया. ठीक है, एक चीज़ ऐड हो गया. दूसरा हमें सोर्स फोल्डर ऐड करना है. सो ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसमें टाइम लगाएंगे. राइट क्लिक, न्यू, एंड वी हैव ऑप्शन सोर्स फोल्डर. तो नाम देना इसको एस आर सी मेन रिसोर्सेज. अगेन ये मैं खुद से नहीं ऐड कर रहा, Maven के स्ट्रक्चर में आता है ये, बट ड्यू टू सम बग इन दिस वर्जन ये ऐड नहीं करता. तो मैं इसलिए इस वर्जन को यूज़ करता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. अगर खुद से ऐड हो जाए तो आप लोग इग्नोर कर दोगे. जब खुद से ऐड करोगे तो याद रहेगा ओके दिस इज द फाइल और दिस इज लोकेशन वेयर वी एक्चुअली ऐड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स. ओके, सो दोनों चीज़ फिक्स हो गई. अभी ये ऑलमोस्ट डन है. एक चीज़ इसमें हटा देते हैं, ये जे यूनिट की लाइब्रेरी पड़ी हुई है. तो पॉम फाइल ओपन करते हैं और वो डिपेंडेंसी टैग वहाँ से हटा देते हैं. फॉर्म फाइल, और ये डिपेंडेंसी मेरे को नहीं चाहिए, हटा दिया. ठीक है, सो अभी क्लीन हो गया प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, अब हमको इस Maven प्रोजेक्ट को, और डेफिनेटली टेस्ट फाइल है तो टेस्ट की चीज़ें भी होंगी तो एडिट मार देते हैं, नहीं चाहिए भाई. ओके, ठीक. सो नाउ दिस इज अ सिंपल Maven एप्लीकेशन. अब इसको हमको स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाना है. क्या तरीका है, उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर दो पॉम फाइल पे. तो पॉम फाइल ओपन करते हैं, इसके जो एक्सएमएल वाला टैब है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ वर्जन ऐड करने पड़ेंगे, पूरा प्रॉपर टैग डालना पड़ेगा डिपेंडेंसी का स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए. तो अगेन वी आर एज वी आर यूजिंग स्प्रिंग 5, सो हम यूज़ करेंगे 5.2.0. ये थोड़ा सा बेटर वे है लाइब्रेरीज को ऐड करने का. तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हो कहीं पर, यहाँ पर है. तो मुझे ये चीज़ ऐड करनी है, कॉपी किया मैंने एंड देन इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है, प्रॉपर्टीज एक दो बार हो गई है तो एक को यहाँ से हटा देते हैं. फॉर्मेट क्या, अभी तक मैंने फाइल सेव नहीं करी है, देखो यहाँ पे स्टार बना हुआ ना, मतलब फाइल अभी सेव नहीं हुई है. ओके, एंड यू कैन सी Maven डिपेंडेंसी इज लॉस्ट, इट्स नॉट हियर, इट्स जस्ट डिलीटेड. अब मैं सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगी फाइल्स. तो ऑलरेडी मेरे लोकल पे है तो इतना टाइम लगाता नहीं है. तो मेरे पास 6-7 लाइब्रेरी आ चुकी है. ओके, सो वी हैव ऑल द लाइब्रेरीज फॉर विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड इनिशियल. मे बी फ्यूचर में अगर कोई और प्रॉपर्टीज या फीचर ऐड करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसमें और हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं. पर दिस इज
इट फॉर नाउ। अब कैसे ऐड किया मैंने, देखो वहाँ पे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी। अब यहाँ पे एक वर्जन टैग था, यहाँ पे क्या कर दिया नहीं है, डॉलर कर्ली ब्रेस। ये हमने कहीं और भी देखा है, ये कहाँ पे देखा है विपिन, कैन यू रिकॉल? ये डॉलर कर्ली ब्रेस, कुछ ऐसा सिग्नेचर, ऐसा, एनीवन, किसी को याद है ये सिंटेक्स हमने कहीं देखा है? चलो हिंट दे देता हूँ, जीएसपी में देखा है। अब बताओ मनन, आपको याद है डॉलर कर्ली सर आई ब्रेस? थिंक वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज में देखा था। एक्सप्रेशन लैंग्वेज देखा था, ईएल, राइट। राइट राइट, हमने देखा था ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, ईएल। तो समथिंग सिमिलर, क्या करता है ये, डायनेमिक चीज़ें लेता है। तो डायनेमिक कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ये स्प्रिंग डॉट वर्जन है, ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंग डॉट वर्जन। तो हमने एक तरह से यहाँ पे की बना दी है, तो ये दिस विल एक्ट एज अ की, ओके, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ प्लेस होल्डर फॉर द की। ठीक है बस। अच्छा कमेंट ऐसे नहीं करते ना इसमें, ऐसे करते हैं। So, बस हो गया। तो जो भी आप ऊपर लिखोगे वो यहाँ पे हो जाएगा। इससे बेटर, इससे होगा क्या कि रन टाइम पे अगर आपको कभी चेंज करना पड़े, क्योंकि अभी हमने क्या कर रखा है, सिर्फ एक डिपेंडेंसी ऐड करी स्प्रिंग की, फ्यूचर में स्प्रिंग की और भी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है, तो हमें तो वर्जन सेम रखना है। तो आप क्या करो, उस लाइन को रिपीट करते चलोगे। कई बार वर्जन आपको चेंज मिसमैच हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे 5.2 चाहिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, एक और लेट्स से मेरे को डीटीओ लाइब्रेरी चाहिए, उसका मुझे 5.1 चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड डिपेंडेंसी टैग, बेटर टू पुट ऑल दिस लाइब्रेरीज एट वन प्लेस। तो एक तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस वर्जन पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये नेमिंग कन्वेंशन है, आप इसको अपना नाम लिख दो, यहाँ पे लिख दो बिपिन डॉट वर्जन, मनन डॉट वर्जन और शुभम, सब चलेगा इसमें। तो इट्स टोटली जस्ट नेमिंग कन्वेंशन कि हम स्प्रिंग का वर्जन लिख रहे हैं, स्प्रिंग डॉट वर्जन लिख लिया। आपको कुछ और लिखना है, आप कुछ लिख लो, कुछ भी लिख लो, बट वट एवर यू विल यूज हियर, सेम टेक्स्ट शुड गो इनसाइड दिस कर्ली ब्रेस। आई होप आप मेकिंग माई सेल्फ क्लियर कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये स्प्रिंग डॉट वर्जन। ये पॉम, मैविन, स्प्रिंग कहीं से नहीं आया हुआ, ये हमारा यूजर डिफाइंड कीवर्ड है, की है ये। ठीक है, तो इतना कर दिया हमने। तो अब फॉर्म फाइल इज रेडी, ऑल द लाइब्रेरीज आर डाउनलोडेड। व्हाट्स नेक्स्ट? अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्टेप 3 अब कर लेते हैं। आप लोग ज्वाइन कर गए तो मैंने आप स्टेप छोड़ दिया, मतलब वहाँ से पिक करना छोड़ दिया, यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। अब हमको बनाना है एंटिटी क्लास, ओके। सो एंटिटी क्लास कुछ भी हो सकती है। तो स्टेप 3 पे क्रिएट एंटिटी क्लास। ठीक है, एंटिटी क्लास क्रिएट करनी है। अब कुछ भी आ सकते, तो लेट्स थिंक अबाउट समथिंग। I don't know, still thinking what to pick. Let's say photo. Okay, so photo class will pick and create its ID. यहाँ पे ID डेटाबेस का कोई सीन नहीं है, तो ID का कुछ भी ले सकते हो आप। और नेम की जगह लेते हैं इसकी width and height। ठीक है, हमने तीन इसकी प्रॉपर्टीज ले ली। तो एक जावा क्लास बनाएंगे और उसमें ये तीन फीचर ऐड कर देंगे। सो लेट्स क्विकली डू दैट। ये पैकेज इसको आता है, अपना पैकेज खुद बनाएंगे हम लोग। सो राइट क्लिक ऑन एसआरसी मेन, न्यू पैकेज, आई विल कॉल दैट com dot sp core। ठीक है, ये रहा पैकेज का नाम। एंड देन न्यू क्लास फोटो। ओके, क्लास आ गया। लेट्स सेट सम प्रॉपर्टीज। सो प्राइवेट इंट आईडी, और इसको लॉन्ग टाइप पे लेते हैं, लॉन्ग विड्थ हाइट। ठीक है, डन। देन लेट्स क्रिएट इट्स एट्रीब्यूटर। ओके, सो अब क्लास इज रेडी, सिंपल प्रोजेक्ट क्लास। कोई इसमें ऐसा एनिमेशन यूज़ नहीं किया मैंने कि लगे कि यार ये कुछ अलग हो गया। हाइबरनेट में फिर भी करना पड़ा क्योंकि वो एंटिटी क्रिएट करना था और वो डेटाबेस से मैप होना था। यहाँ पे डेटाबेस नहीं है। सो दैट्स इट, आवर क्लास इज रेडी। नाउ वी नीड टू डू सम कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
इसमें कॉन्फ़िगरेशन एज कम्पेयर टू हाइब्रिड क्वाइट इजी, सिंपल है, ज़्यादा उसमें कंटेंट ऐड नहीं करना आपको कि फाइल भर देनी है बिल्कुल और लगे कि हैवी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होने वाला। सो इट्स फेयरली इजी। ओ कलर बटन प्रेस कर दिया मैंने, काम नहीं करेगा। चलो कोई नहीं। सेटर्स एंड गेटर्स राइट, रिक्वायर्ड है। तो स्टेप 3 भी क्लियर हो गया। अभी तक हमने कुछ ऐसा नया नहीं करा, हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। तो स्टेप पेज 3 में करते हैं सेव। नाउ स्टेप 4 में configure the photo class as entity in spring config file। ठीक है, आपको ये स्टेप करना है। ये थोड़ा सा नया होगा क्योंकि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, नया फ्रेमवर्क है, क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा, पर अभी ये करना है। स्टेप 4 में हमें कॉन्फ़िगर करना है फोटो क्लास को, सॉरी माय बैड, नॉट एज एंटिटी, एज बी इन स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, तो अगेन एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है स्प्रिंग की, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट अगेन एज ए सेट थोड़ा सिंपल है। तो मैंने ऑलरेडी फाइल पिक कर लिया, इसको करते हैं से कॉपी, और क्या करेंगे हम लोग, ये जो रिसोर्सेज फोल्डर है मैन्युअली कॉपी करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे अदर पे जाएंगे, देन वी विल टाइप फाइल, सिंपल फाइल, ओके, नाम नहीं, कोई इसका टाइप डिफाइन नहीं, जस्ट इट्स अ फाइल, वो हम पे डिपेंड करेगा करंट टाइम पे क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, यू कैन नेम इट एनीथिंग, ऐसे फिक्स नहीं कि इसका नाम स्प्रिंग ही रखना है, पर मैं स्प्रिंग रखता हूँ, स्प्रिंग कोर डॉट एक्सएमएल, यू कैन नेम इट एनीथिंग, डजंट मैटर, एंड देन फिनिश। ब्लैंक फाइल है, दो डिज़ाइन होते हैं, देखो डिज़ाइन एम्प्टी है, सोर्स एम्प्टी है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। डन, दिस मच यू टू ऐड। तो दिस इज अ स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ऊपर हेडर टैग है जो कि एक्सएमएल फाइल की इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ये रूट टैग है बीन्स, और उसके अंदर बहुत सारे एक्सएमएल के नेम स्पेस है। ये ऑलरेडी कवर कर चुका जब मैवन और हाइबरनेट स्टार्ट किया था, तो ये वही चीज़ है, रिपीट हुए। तो दैट्स इट फॉर एक्सएमएल फाइल। ये इंपॉर्टेंट होता है गाइस, यहाँ पे सारे यू कैन से सोर्स कोड होता है, जितना भी सोर्स कोड स्प्रिंग को चाहिए होता है वो सब यहाँ से निकाल के आता है वो रन टाइम पर। ओके, सो डन हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? अब एग्जैक्टली हमें करना क्या था, हमें कॉन्फ़िगर करना था फोटो क्लास को एज अ बीन। ओके, तो अभी काम करते हैं, स्टेप स्टेप को ही रोकते हैं और स्टेप 5 पे आ जाते हैं। स्टेप 5 पे आ गए और यहाँ पे क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ, हमने यहाँ पे टर्म पढ़ा था स्प्रिंग कंटेनर, राइट। सो हम ये करने वाले हैं, हम स्प्रिंग कंटेनर का एक इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। बाय यूजिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो ये करना है हमको। तो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें जैसे जावा में बनाते हैं, और उससे क्या होगा, मैनुअली वी कैन क्रिएट इंस्टेंस ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। तो वो करते हैं कोड में जाकर। सो एक और पैकेज बनाता हूँ मैं टेस्टर के लिए, टेस्टिंग करेंगे उसमें। सो क्या लिखा, कॉम डॉट एस पी कोर डॉट टेस्टर, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको करते हैं डॉट बी, ठीक है। सो वी जस्ट चेंज द नेम फ्रॉम, एक्चुअली रीनेम कर दिया हमने, बी ऐड कर दिया। टेस्टर में एक मेन मेथड बनाएंगे क्योंकि और कोई तरीका है नहीं टेस्ट करने का अपने पास। तो क्या नाम था, फोटो टेस्टर, फोटो टेस्टर, ओके। एज वी डोंट हैव एनी अदर वे, सो विल क्रिएट मेन मेथड एंड यहाँ से स्प्रिंग कंटेनर को मैनुअली क्रिएट करेंगे। तो क्या स्टेप है, एक क्लास है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये क्लास है। ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन की फाइल देनी है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारे पास।
तो लोकेशन इसको पता है कि बाय डिफॉल्ट इतना तो होगा, ठीक है, कि बिकॉज इट्स अ स्प्रिंग मैवन एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग को भी पता है कि व्हेन इट कम्स टू मैवन ऑल कॉन्फ़िगरेशन गोज इनसाइड एसआरसी मेन रिसोर्स। इतना इसके पास बाय डिफॉल्ट है, आपको इसके आगे का फिल करना है, ठीक है गाइस, इसके आगे का। तो वो है हमारे पास ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेट कर दूंगा, तो ये बिकम्स ऐसा हो जाएगा। अभी समझ में आ गया? ये क्लास एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास है, ये इसके थ्रू वी एक्चुअली क्रिएट अ स्प्रिंग कंटेनर, इन मेमोरी कंटेनर, और उसको हमें उसमें हमें स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ देना होता है। और आप डॉक्यूमेंट चेक करोगे तो क्या लिखा हुआ है, create a new this loading the definitions, listen or read this carefully, loading the definitions from the given XML file and automatically refresh the context। ये context मतलब स्प्रिंग कंटेनर की बात हो रही है यहाँ पर। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टर इसके हैं, डिफ़ॉल्ट है, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रखता है, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बहुत सारे टाइप्स, एंड देन स्ट्रिंग का पैरामीटर एंड नलेबल थिंग। तो इसमें बहुत सारे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। हमारे काम का ये है जिसमें हम एक पाथ दे देंगे जो कि ऑलरेडी स्प्रिंग कंटेनर को पता है कि एसआरसी में रिसोर्सेज इज अ डिफॉल्ट लोकेशन फॉर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। जैसे ही यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे तो इसके बाद वो इसको अपेंड कर देगा, सो इट बिकम्स कंप्लीट पाथ, और यहाँ से फाइल रीड हो जाएगी। क्या होगी, डेफिनेशन रीड हो जाएगी जितनी भी। तो ठीक है, इतना काम हो गया। देन इट रिटर्न्स अ एप्लीकेशन, सो वी विल स्टोर दैट इन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगेन यहाँ से पिक करेंगे एंड डन। बस इतना स्टेप है गाइस, उसमें कुछ खास नहीं है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, एक मेथड है गेट बीन, इसको कॉल करना है। तो गेट बीन में ये स्ट्रिंग देंगे हम, मैं कहूँगा इसमें फोटो, पर हमारे पास तो बीन क्लास अभी तक बनी नहीं है क्योंकि हमने 4 स्टेप मिस कर दिया। क्या लिखा था, कॉन्फ़िगर फोटो क्लास एज बीन। जब हमारे पास एक बीन क्लास होगी तभी तो हम स्टेप 5 पे जा सकेंगे, तो इसलिए अब हमको बीन बनाना जरूरी है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आएगा कि हम स्टेप 4 क्यों मिस करा, क्या कि दिखाने के लिए एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है क्या। तो हमने क्या करा, हमने एक टेस्टर बनाया, और तरीका क्या है कि पहले हमको स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट करना है। स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट होने के बाद वो इस फाइल को रीड करेगा, और फिर हम उस एक्सएमएल फाइल से बीन्स को रीड कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस थ्रू न्यू कीवर्ड। यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं होगा और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। तो पर आपने अभी तक इसको बीन कन्वर्ट ही नहीं किया, ये तो सिंपल पोजो क्लास है। सो लेट्स कन्वर्ट दिस पोजो क्लास इनटू अ बीन। तो उसके लिए आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा, बीन। इस बीन के आईडी के पास एक आईडी होगा जिसको हम देते हैं फोटो। अगेन इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस ऑफ योर ऑब्जेक्ट। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, सो वन वे इज यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस वे, फोटो इक्वल्स न्यू फोटो, राइट। शुभम, इसमें ये फोटो क्या है, व्हाट इज फोटो हियर? सर ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया सर फोटो क्लास का एक। नहीं नहीं, दिस फोटो आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन हाइलाइटेड वन, व्हाट इज दिस? दे फोटो, दिस वन, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसे? सर ये ऑब्जेक्ट बना सर। ऑब्जेक्ट बना, चलो ठीक है, ओके। पिपिन, ओके फाइन। शुभम, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ओके दिस इज, क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली? रेफरेंस। रेफरेंस। शुभम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाइए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है इसके पास। सर अभी मैं अभी रेफरेंस भी बोलने वाला था, उसके बाद फिर मैं मतलब मेरे को लगा कि शायद। तो गलत तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कर लूंगा? हाँ। नहीं नहीं, मतलब मैं बोलने वाला था फिर मैं चुप हो गया सर। चुप हो रेफरेंस ठीक गए, है, समझ गया सर। अच्छा ठीक है, समझ गए। अब जैसे ये हाँ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये क्या है, एक्स क्या है, क्या बोलोगे, ये इंट है ये, ये रेफरेंस है सर उसका। है ना, जो कहीं भी मेमोरी में जब 50 स्टोर होगा तो उसका रेफरेंस बनेगा ना ये, यस सर, समझ है गया ना। सर। बस तो ऐसे ही रेफरेंस है। अब इसका नाम क्या रखा हमने, स्मॉल पी फोटो, राइट। सो जावा में जो हम लोग ये पी स्मॉल फोटो यूज कर रहे हैं, सेम फोटो यहाँ पे एक्ट करेगा ये। तो जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट का ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा ये वाला फोटो इन स्प्रिंग कोर। सो इसको कनेक्ट कर पाओगे तो काफ़ी इजीली आगे की चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो दिस फोटो एंड दैट फोटो इन डबल कोट्स बोथ आर सेम। तो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आता जावा में तो ये आराम समझ सको कि ये फोटो
क्या कर सकता है ये, इसके थ्रू हम गेट सेट कर सकते हैं। सेम काम यहाँ से कर पाएंगे हम लोग। तो जो आईडी दी है हमें एग्जैक्टली, हमने रेफरेंस दिया उस बीन का जो मेमोरी में सेव होगा स्प्रिंग कंटेनर के। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर। तो अब इतना करते हैं और इस पर जाते हैं वापस। तो अब हमारे पास रेफरेंस आ चुका है फोटो का। अब गेट बीन का ऑब्जेक्ट हमें पता है कि ये जो रेफरेंस है इसका टाइप क्या है, फोटो टाइप है। एग्जैक्टली हम जो क्लास बनाते हैं जावा में, गाइस समझो कि जितने भी चीज़ बन रही है एक्चुअली हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। कहने को तो ये जावा क्लास है, फोटो जावा क्लास। पर अगर कोई मुझे पूछे इस क्लास का टाइप क्या है, तो टाइप इज फोटो। इफ आई ओपन इन एनी अदर कोर एप्लीकेशन, वहाँ पे ने बहुत सी क्लासेस बनाई थी, किसी भी एक को ओपन करके देख लेते हैं। इसमें ठीक है। अब जैसे एक क्लास है यहाँ पर, एक क्लास है स्नो। अब मेरे से पूछे ये क्या है, मैं बोलूँगा जावा क्लास है। फिर मेरे से पूछेगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का टाइप क्या है। अब टाइप में कंफ्यूज हूँ टाइप क्या है, तो टाइप कुछ नहीं, यही है टाइप आपका। तो आपने किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, स्नो टाइप का। जब हम लिखते हैं इंट, कंपेयर कनेक्ट करना गाइज, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है काफ़ी। जैसे मैंने ये लिखा इंट एक्स इक्वल टू 60, तो मैं क्या पूछूंगा कि व्हाट इज दिस, अब बोलोगे एक वेरिएबल है। ओके, उसकी वैल्यू क्या है 60, पर उसका टाइप क्या है, वो इंट टाइप का है। अगर एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल का नाम है, इसका टाइप क्या है, इंट। ऐसी ये क्या है, ये क्लास है, इस क्लास का टाइप क्या है, स्नो। तो उसी तरह जब हम टेस्टर फाइल में जाते हैं, फोर टेस्टर पे यहाँ लिखते हैं गेट बिन, तो हमारे हमको कैसे पता है कि गेट बिन का टाइप क्या है। तो टाइप हमें पता है क्योंकि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, पर अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, हमने सिर्फ आईडी दी है, टाइप तो अभी भी डिफाइन नहीं किया हमने। तो टाइप तो बताना पड़ेगा। सो वी गो फॉर क्लास, और यहाँ पर आपको देना है फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ दैट क्लास। फुली क्वालिफाइड नेम इज शुभम, आपने तो उस क्लास में शायद, इसलिए मैं आपसे बार पूछ रहा हूँ। सर इंक्लूडिंग पैकेज नेम। करेक्ट, ग्रेट। यस, तो हमको यहाँ पर फुली क्वालिफाइड नेम देना उस क्लास का, डॉट फोटो, खत्म। अब हमने क्या करा, हमने आईडी बता दी कि ये रेफरेंस है और ये इसका टाइप है। ओके, जब यहाँ पता लग गया तो फिर टेस्ट में कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने जब गेट बिन किया तो फोटो आया, तो हमको पता है इसका टाइप क्या आएगा, फोटो आएगा। फोटो, फोटो एंड, अब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये बोलेगा कि गेट बिन तो ऑब्जेक्ट देता है, तो हमको कास्ट करना पड़ेगा, मिसमैच हो रहा है। गेट बिन का टाइप है, रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट, देयर इट इज। बीन फैक्ट्री क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है गेट बीन, इसका रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट टाइप, ग्लोबल कर दिया, क्योंकि डेवलपर को तो पता है ना वो क्या कर रहा है। तो हम इसको कास्ट कर लेते हैं, कैसे, ऐसे करके। कास्टिंग ऐसे ही होती है। हमने लास्ट टाइम जब आईओ पैकेज कर रहे थे तभी यहाँ पे कास्टिंग की थी, इंड से कैर पे जब एसके को डर था, सेम यहाँ पे करना है, स्मॉल पी नहीं कैपिटल पी। ओके, कास्टिंग डन। देन व्हाट, लेट्स प्रिंट द रेफरेंस। मैं रेफरेंस प्रिंट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं करा तक मैंने। एक्सएमएल फाइल में कुछ नहीं है, बस बीन बनाया मैंने, एम्प्टी बीन है, और यहाँ पे उसको रेफरेंस प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, रन एज एप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या लिखा गया, ये कुछ देखा बस लग रहा है ना, हमने देखा है ऐसे कुछ पहले भी कभी फ्यूचर में भी, पीछे क्लासेस में। चलो एक काम और करते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए फोटो, फोटो टू इक्वल्स न्यू फोटो, देन से स्टार्ट करते हैं फिर से, और फोटो टू लगा देते हैं। इसको रन कर देखते हैं क्या बोलता है ये। सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, ये भी कुछ दे रहा है, सेम नहीं होगा डेफिनेटली, पर अलग तो है लेकिन एक जैसा आ रहा है। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ फुली फ्लैश्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्रिंग कंटेनर। ये आ रहा है जेवीएम से डायरेक्टली। गाइस जेवीएम स्प्रिंग कंटेनर डिफरेंट चलते हैं, एक जेवीएम में मल्टीपल स्प्रिंग कंटेनर हो सकते हैं। ठीक है, इफ आई हैव टू ड्रॉ सिंपल डायग्राम फॉर दिस, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे में क्लियर हो जाएगा। सो जेवीएम इज वन, जेवीएम तक इंस्टॉल होगा राइट, ये आपका जेवीएम चल रहा है। इस जेवीएम में मल्टीपल स्प्रिंग कंटेनर रन कर सकते हैं। ओके, और वो एक्ट एज अ जेवीएम वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे भी एक स्प्रिंग कंटेनर हो सकता है, ये भी स्प्रिंग कंटेनर हो सकता है, ये भी एक स्प्रिंग कंटेनर हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कॉन्फ़िगरिंग इट। हम लोग एक नॉर्मल डेवलपर की तरह काम करते हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं है मल्टीपल स्प्रिंग कंटेनर की। तो बट इट्स पॉसिबल, इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट। सो स्प्रिंग कंटेनर, तो दिस इज स्प्रिंग कंटेनर, दिस,
this and this. Okay, so you can see output is quite similar. Package का नाम, then class का नाम, then @, and then some hexadecimal code, hexadecimal code is there. ठीक है, सेम आ रहा है, पर फर्दर चेक करते हैं कि ये तो मैंने कर दिया, तो इसे रख लेते हैं कमेंट करके. नाउ आई वांट टू इनिशियलाइज सर्टेन स्टेप्स. सो एक काम तो मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या करूँ मैं, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लेता हूँ ना, जल्दी हो जाएगा. और फिर देखते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, टू स्ट्रिंग को डिलीट के आता हूँ, राइट क्लिक, सोर्स, टू स्ट्रिंग. यहाँ पे सिर्फ आईडी के लिए जनरेट करता हूँ, मुझे सिर्फ आईडी चाहिए फिलहाल, आईडी में इंटरेस्टेड हूँ मैं, फोटो और उसकी आईडी, ऐसा प्रिंट हो जाएगा. ये स्ट्रक्चर प्रीडिफाइंड आता है, यू कैन चेंज इट. सो मैंने क्लिप्स के थ्रू एक टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट करा और ये आ गया. अब इस कोड को रन करते हैं. ठीक है, फोटो आया, आईडी इक्वल 0, तो टू स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट कॉल कर गया, ये हमने कोड जावा में से देख लिया था. अब आईडी 0 आई है, मुझे आईडी की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, फोटो 2 डॉट सेट आईडी करता हूँ. मैंने कर दिया 500. ओके, अब अगर कोड रन करता तो मैं 500 आ गया. ऊपर तो अभी 0 चल रहा है, पर एटलीस्ट जो नीचे जो हमने जो कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था इसके थ्रू, जेडीके के थ्रू या जीवीएम के थ्रू, वो रन कर रहा है वो प्रॉपर, है ना. 500 नीचे वाला आ गया, ये वाला. मुझे तो इसका भी आईडी कुछ चाहिए. 0 तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट इंट की वैल्यू डिफ़ॉल्ट में 0 होती है जावा में. तो मुझे चाहिए इसकी वैल्यू भी चाहिए कि फ़ोटो में कुछ तो आईडी हो. तो मैं वापस जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में. अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सब टैग्स देखेंगे. तो एक टैग होता है इसमें प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपको देना है उसका प्रॉपर्टी का नाम, कि मेरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आईडी. ओके, वैल्यू क्या है इसकी, तो वैल्यू दे देते हैं लेट्स से 101 एंड टैग क्लोज. ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस क्लास के अंदर एक जो फील्ड थी उसको इनिशियलाइज कर दिया. ओके, अब चेक करते हैं वापस टेस्टर पे जाकर. सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन एंड 101. नाउ वी आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम वेयर, फ्रॉम XML फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हमें वैल्यू मिल रही है. तो ये एक सिंपल तरीका है एप्लीकेशन को रन करने का इन स्प्रिंग एप्लीकेशन. तो स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं. तो हमने क्या करा, फोर्थ स्टेप में स्प्रिंग फाइल को कॉन्फ़िगर करा और उसके अंदर एक बीन बनाया अपने इस क्लास का. यहाँ भी एंट्री लिख रहा हूँ मैं, अभी तक हाइबरनेट दिमाग से गया नहीं है भाई. कोई बता भी नहीं रहा, सर आप एंट्री लिख रहे हो, बताओ ना कि कर लिख दिया, बीन होगा. ज़्यादा सीरियस हो गया क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क सुनकर? नहीं सर, हम भी नए हैं सर, एनडीटी वाली आदत पड़ी हुई है अभी. अच्छा. ये सही बात है. ठीक है, चलो. ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टेप 4 में जो ये बीन थी वो कॉन्फ़िगर हो गया. एंड फाइनल स्टेप पे हमने कोड रन भी करके देख लिया, और दोनों तरीके से करके देख लिया हमने, राइट. हमने देखा कि जावा में जो अब तक करते आ रहे हैं उसमें कैसे करते थे, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में या स्प्रिंग कोर में कितना डिफरेंस आया. सो दिस इज द वे टू डू initialization of any field in Spring Framework. Mm, 4. ठीक है, ऐसे ही आपको जो बाकी फील्ड्स हैं उनको इनिशियलाइज करना है, तो वापस स्प्रिंग एक्सएमएल पे जाइए और यहाँ पर बाकी फील्ड का नाम लिख दीजिए. सो एक फील्ड का नाम है विड्थ, एक का हाइट. विड्थ, हाइट. विड्थ दे देते हैं 30, हाइट दे देते हैं 40 50 वट एवर. ठीक है, हाइट, और यहाँ पर ये स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मिसमैच होगा तो गड़बड़ हो जाएगी. अब रन करते हैं, रन एज. अच्छा, हम लेकिन टू स्ट्रिंग में चेंज नहीं करा, टू स्ट्रिंग को चेंज कर लेते हैं. इसको हटाते हैं, नया इम्प्लीमेंटेशन लेके आते हैं, अदरवाइज वो वैल्यू प्रिंट ही नहीं करेगा इवन इफ यू आर पासिंग इट. सोर्स टू स्ट्रिंग, दिस टाइम आई नीड ऑल फील्ड्स, सो लेट इट बी एंड देन जनरेट कर देते हैं. ओके, टू स्ट्रिंग भी परफेक्टली बन गया. नाउ गोइंग बैक टू टेस्टर, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन. आप देखिए यहाँ पर आराम से आईडी भी आ गया, विड्थ भी आ गया, हाइट भी आ गई. अगर ये काम हमें जावा में करना होता तो हमें सेटर भी कॉल करने पड़ते, है ना. यहाँ पर लगाना पड़ता कुछ विड्थ विड्थ लगा के, सेट विड्थ देन सेट हाइट.
ओके, कोड एग्जीक्यूटेड, आ गया यहाँ पर, इसकी वैल्यूज आ गई, इसकी वैल्यू। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि कोड जावा में कैसे होता है, स्प्रिंग कोड में कैसे होता है। क्या डिफरेंस आया कि हमारे जो कोड है ये एटलीस्ट क्लीन है। यहाँ पर हमें वो सेटर गटर को एक्सप्लिसिटली कॉल करनी पड़ेगी, एटलीस्ट सेट नहीं करना पड़ेगा। गेट चाहो तो कर सकते हो, गेट करना कैसे करोगे, सेम स्ट्रेट तरीका है। आईडी को प्रिंट करना है तो यहाँ पे गए, फोटो डॉट गेट आईडी, हो गया। एग्जीक्यूट करा, आईडी से लिख के आ गया। ऐसे आप बाकी फील्ड लेके आ सकते हो। विड्थ बाकी खुद कर लेना, इतना मुझे बताने जरूरत नहीं पड़ेगी आई गेस। विड्थ आ गया, एग्जीक्यूटेड, सो विड्थ आ गया 30, ये रही 30, ये रही 30। तो सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको एक्सप्लिसिटली अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एक्सेल में, तो वो यहाँ से हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट कुछ भी हो तो बताओ या पूछ लो, कुछ और थॉट आ रहा दिमाग में कि या वैसे कैसे, पूछ लो। स्टेप वापस रिवाइज कर लेते हैं, एग्जैक्टली हमने करा क्या। दिस इज अगेन क्वाइट मच सिंपलर एज कम्पेयर टू हाइबरनेट। वहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, यहाँ पे आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन डालनी ही नहीं है। अगर आप एक्सएमएल फाइल देखोगे तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। ये चीज़ें इसको आप खुद से इसको इसको टाइप मत करना कोई भी, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि सोचो कि मैं बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस करके इसको भी टाइप करूँगा, ऐसा मत करना। इसको आपको टाइप करनी जरूरत पड़ेगी इवन इफ़ यू गो टू वेबसाइट ओरेकल या फिर जो इसकी स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको डमी वैल्यू मिल जाएंगी, वहाँ से वो निकाल सकते हो। पर ये चीज़ टाइप मत करना, यहाँ पे 100% जहाँ से गलती कर दोगे, एक छोटा सा डॉट मिस हो गया या फिर स्पेलिंग मिस हो गई, दिखेगा भी नहीं कहाँ मिस हो गया। तो ये चीज़ें इसलिए मैं क्लास में भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, ताकि वो फिक्स करने ना बैठो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो डेवलपमेंट में आप कभी भी एटलीस्ट ये चीज़ पे आप कभी नहीं जाओगे। इसके लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो कर देंगे, आप लोगों को तो ये भी नहीं करना। ये तो एक तरीका है स्टार्ट करने का, तो हमने स्टार्ट कर लिया। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट बीन्स इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, या फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ बढ़िया बढ़िया करके। गाइस जल्दी बोलो, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। यस सर, होमवर्क दे दो। यस सर। तो आगे ना पढ़ाऊँ, पहले आप इतना पढ़ लो ना, वो ठीक रहेगा। नो सर। ठीक है, नहीं पढ़ाते। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ो, इसमें मैं दो तीन चीज़ ऐड करता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या करा, स्प्रिंग कंटेनर बनाया। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज हाउ वी डू स्प्रिंग कंटेनर इनिशियलाइजिंग। इंस्टेंस ऑफ स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। आई, तो इसके थ्रू बनता है ये, एवरीथिंग इज क्लास। आप कोई सर्वर ले लो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो, अल्टीमेटली इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ क्लास। वही हुआ है, एक क्लास कॉल किया है, अल्टीमेटली ये एक कंटेनर क्रिएट करता है इन मेमोरी, जो कि सारा कुछ मैनेज करता है इंटरनली, हमें सामने कुछ नहीं दिखेगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस होल थिंग इज एब्स्ट्रैक्टेड। अगेन मैं उस कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करता रहूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्शन का। आपने यहाँ पर सिर्फ एक क्लास कॉल करी है, पर बिहाइंड द सीन इतना कुछ हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि क्या क्या क्रिएट कर लिया इसने, और अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू आ गई। तो कैसे इसने रीड किया हुआ एक्सेल फाइल को, तो यहाँ पे मार्शलिंग और अनमार्शलिंग होती है एक्सेल फाइल की, ये एक टेक्निकल टर्म्स है। जब भी हम एक्सएमएल को रीड करते हैं तो मार्शलिंग कहते हैं, जब राइट करते हैं तो अनमार्शलिंग कहते हैं, मतलब मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग चलता है। तो स्प्रिंग कंटेनर उसको यूज़ करता है, और प्लस जितने वैल्यूज उसने पढ़ी है सबको मैप करता है। जो भी एक्सएमएल में फील्ड्स पड़ी हुई हैं, जो भी एक्सएमएल में, ये वाली एक्सएमएल में, सॉरी माय बैड, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो ये फील्ड्स पड़ी हैं, इन फील्ड्स की आईडी चेक करता है और इसको मैप करता है इस क्लास से। सो दो बड़े काम इसमें होते हैं। सॉरी, एक स्टेप और आगे बढ़ता है। पहले तो जब इसका ये क्लास कॉल हुआ टेस्टर वाला, तो यहाँ पर इसने क्या करा, फाइल को रीड करा, डेफिनेशन रीड हुई, बीन का पता लगा कौन सी बीन आ रही है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ये जो फील्ड्स हैं क्रॉस चेक हुए कि आईडी क्या इस क्लास के अंदर है, आईडी देखेगा यस आईडी है। तो internally guys listen carefully, internally it uses its setter to check and to initialize the value of id। तो जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू 101 देकर रखी है, वो एग्जैक्टली exactly इस सेटर को यूज़ करती है वो। अगर मैं यहाँ से कमेंट कर दूँ, एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। मैं सारे सेटर कमेंट कर दे रहा हूँ, सेट विड्थ, सेट दिस एंड सेट हाइट। मैंने ऐसे कभी चेक नहीं करा, कर लेते हैं और ये कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ एक्सप्लिसिटली यूज़ कर रहे हैं।
लेसन है। सो सिर्फ गेटर्स हैं, सेटर नहीं है। देखा क्या है? इनवैलिड प्रॉपर्टी ऑफ आईडी। क्या मिसिंग है? बीन प्रॉपर्टी आईडी इज नॉट राइटेबल और हैज एन इनवैलिड सेटर मेथड। जब हमने कोड जावा स्टार्ट किया तो मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि वो जो क्लास बहुत अच्छी यूज होती है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिखाऊंगा कि कहाँ use होती है। ये आप किसी यूट्यूब वीडियो पर या डॉक्यूमेंट में नहीं मिलने वाला आपको ये चीज़, कि ये आईडी, ये जो एक्सेप्शन आने वाला, ये नॉट राइटेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्शन, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये तब मिलेगा जब कोई आपको एक्सपीरियंस बंदा पढ़ा रहा हो, जिसने ये चीज़ें देखी होंगी और जिसने एक्चुअली स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत काम किया होगा। वरना पढ़ाने वाले बहुत बैठे हुए हैं, पर ये एक्सेप्शन आपको जल्दी मिलेगी नहीं कहीं पर कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ये जो सेटर है, मैंने क्या कर दिया, कमेंट। तो जो इंटरनली जब कन्वर्जन होती है और ये जो वैल्यू असाइन होती है इस आईडी यहाँ से रीड होकर इस पोजो क्लास पर या फिर बीन क्लास पर, तो वो सेटर के थ्रू होती है, और मैं सेटर कमेंट कर दिया, तो व्हाट वी गेट, नॉट राइटेबल एक्सेप्शन। इसलिए सेटर्स गेटर्स आर रियली क्रिटिकल टू एनी एप्लीकेशन। इसलिए हम कभी उनको खुद से क्रिएट नहीं करते, वी ऑलवेज यूज दिस आईडीज। जैसे क्लिप्स है, इंटेलिज है, हम कभी खुद से क्रिएट नहीं करते कि लगे खुद से बैठने में गेटर लिख रहे हैं, सेटर लिख रहे हैं। क्लास में तो 50 फील्ड हो सकती हैं, तो निकल गया एक पूरा दिन उसी में ही। और गलती होने के चांस तो उसमें पक्का बने रहेंगे जैसे फील्ड्स बड़े होंगे। तो डेट्स वाई वी ऑलवेज यूज टूल्स टू जनरेट आवर स्टफ्स। ऐसी टूस्टिंग का भी रोल है, पर वो सिर्फ हमारे सिंपल डेटा देखने के लिए, इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ हमारे लिए होता है कि एग्जैक्टली वैल्यू चेक कर लें कि वैल्यू क्या है ये। सो आई होप सेटर का भी आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन गाइस। मैं पढ़ा नहीं रहा, बस जो चीज़ करी है उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने एग्जैक्टली एक टॉपिक कवर कर लिया, वो था डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो व्हाट वी डिड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैं इसको रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे क्यों आया ये। एक मिनट, इसको कंप्लीट कर दें। If we comment setters from the bean class, then we get below exception not writable. Okay, so done. इतना हो गया clear. Now let's go back to the same. मैंने अभी mention किया dependency injection. So what we did, we have seen dependency injection through setters. DI using constructor. So दूसरा तरीका है dependency injection का थ्रू कंस्ट्रक्टर्स। तो ये आपको पढ़ के आना है और एग्जाम्पल बनाना है इसका विद एग्जाम्पल। तो थियरी प्लस प्रैक्टिकल इसमें दोनों है। ठीक है, आइए बस इतना कर लो और कुछ नहीं, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ही टास्क दे रहा हूँ, और ये कल करके आना। इट इज़ मैंडेटरी टू डू, वरना फिर उसका इम्पैक्ट आपको बाद में दिखेगा। ओके गाइज, सो होमवर्क क्लियर है क्या करना है। जो हमने अभी एग्जाम्पल किया वो एग्जैक्टली था डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एग्जाम्पल थ्रू सेटर्स। तो अब इतना समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं इसको फिर से पिक करता हूँ, एक और इमेज पे लिखता हूँ, दो बन गए। DI यूजिंग सेटर्स। ओके, सो ये फील्ड बनाया और इसके बाद इसके XML की एंट्री करी, इसके बाद इसको कॉल करा। उप्स, कंफ्यूज तो नहीं होगा भाई आप लोग, बता देना कंफ्यूज हो गए तो, कल दोबारा कर लेंगे। ज़्यादा लगेगी एकदम बहुत तेज़ पढ़ा दिया हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल रिवाइज ज़रूर करेंगे। पर अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो मतलब स्प्रिंग का जो एक बड़ा बेस था वो हमने क्लियर कर लिया। मे भी शायद फास्ट हो गया, कोई बात नहीं, इतना अगर आप कर लोगे तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कुछ खास बचता नहीं है। अगर आप लोग को ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आ गया तो फर्दर थिंग्स आर क्वाइट सिंपल, पर उसको समझने में टाइम लगेगा। ये नहीं कह रहा कि एक दिन में आ जाएगा, नहीं आने वाला एक दिन में, इट टेक्स टाइम, मे बी 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क खत्म हो चुका होगा, मतलब स्प्रिंग का कोर, पर आप लोग उसको समझ रहे होगे एक्जैक्टली ये ऐसे ऐसे हुआ। इट टेक्स टाइम, अगर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा तो, खुद से पढ़ोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो हमने सेटर का एग्जाम्पल करा, और सेटर का प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, तो कमेंट कर देता हूँ ऐसे करके,
सेटर्स एंड गेटर्स, और यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल थी। और ये टेस्टर फाइल। ठीक है, आज के लिए इतने बहुत है। तो हमने एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जांपल देखा, एग्जैक्टली और क्या क्या होता है हम और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने एक टॉपिक कवर करा, डीआई थ्रू सेटर्स। आप लोगों का काम है कि कल इतना करने के बाद ट्राई करिएगा कि हाउ टू डू कॉन्फ़िगरेशन और हाउ टू डू डिपेंडेंसी इंजेक्शन थ्रू कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों का। होमवर्क क्लियर है? कोई डाउट बताओ। ओके सर। क्लियर? यस चलो, सर। ओके गाइस, ठीक है फिर।